السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه وإخوانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا احسان فضل کرم جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے آداب طالب العلم کے تعلق سے، گزشتہ درس میں ہم نے اس کتاب کے بنیادی صفحات جو تھے ان پر لب کشائی فرمائی. تو ان میں سے ہم نے سب سے پہلے علم کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جہالت کے بارے میں، جہالت کی انواع کے بارے میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور اہم نکات جن پر روشنی ہم نے رکھی، اور انواع العلوم کے تعلق سے بھی بات ہوئی. اور اب جو ہمارا یہاں پر نقطہ آنے والا ہے، چونکہ گزشتہ درس میں بات علم کے تعلق سے ہوئی، اب ہمارے سامنے جو نقطہ ہے وہ ہے طالب العلم. یعنی طالب العلم کسے کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے طالب اگر ہم لنگوسٹک اعتبار سے دیکھیں، لغوی اعتبار سے دیکھیں، تو یہ اسم فاعل ہے. اسم فاعل یعنی جس کا معنی بنتا ہے عربی زبان میں الذی یطلب العلم، یعنی جو علم تلاش کرتا ہے، جو علم ڈھونڈ رہا ہے، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں علم کا متلاشی، علم کو ڈھونڈنے والا. وہ طالب کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہو، علم کو ڈھونڈ رہا ہو. اور لفظ طالب جو ہے اس کا جو مادہ ہے، یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے طلبہ یطلبو، یعنی یہ طلبہ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے ٹرائی ٹو فائنڈ، لک فار، سرچ فار، سیک. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے معانی بنتے ہیں. اور اس کا جو مصدر بنتا ہے وہ ہے طلباً، یعنی ٹو سیک، طلباً ٹو سیک. اگر ہم اب طالب العلم کو مرکب کی صورت میں دیکھیں، یعنی اس کا معنی کیا بنتا ہے مرکب کی صورت میں، تو اس کا معنی بنتا ہے سیکر آف نالج، یا ہم کہہ سکتے ہیں سیکر آف ریولیشن. یعنی جو شریعت کا طالب علم ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین جو ترجمہ بنتا ہے وہ ہے سیکر آف ریولیشن، کیونکہ یہ کسی دنیاوی چیز کا طالب نہیں ہوتا ہے. یعنی شریعت کا طالب علم یہ کسی دنیاوی چیز کا طالب نہیں ہوتا، بلکہ یہ وحی کا طالب علم ہوتا ہے. اس لیے اس کے لیے بعض علماء فرماتے ہیں سیکر آف ریولیشن، یا سیکر آف نالج بھی کہہ سکتے ہیں، یا عام فہم زبان میں کہتے ہیں اسٹوڈنٹ آف نالج. بہرحال تو ان معنی میں لفظ طالب علم استعمال ہوتا ہے. اگر ہم کہیں گے سیکر آف ریولیشن، تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے یہ کیوں کہا سیکر آف ریولیشن، جیسے کہ میں نے ابھی بات کی، یعنی جو اصل میں وحی کو ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی وہ طالب علم جو اصل میں وحی کو تلاش کرتے ہیں. اور انہی کے تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
सुनन नबी दाऊद, सुनन तिरमिजी में एक हदीस बयान फरमाया कि व इन तालिबल इल्म, व इन तालिबल इल्म, यानी जो शरीयत का तालिब इल्म होता है, यस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति मन फिस समाई वल अर्ज, इसके लिए आसमान और ज़मीन में जितनी मखलूक़ात हैं वो इसके लिए इस्तिग़फ़ार करती है। अल्लाहु अकबर। यानी जो शरीयत का तालिब होता है, जो शरीयत की वही का तालिब इल्म होता है, उसके लिए आसमान और ज़मीन में जितनी मखलूक़ात हैं वो इसके लिए इस्तिग़फ़ार करती है। हत्तल हीतानु फिल्मा, हत्ता कि जो मछली होती हैं पानी में, वो भी इसके लिए इस्तिग़फ़ार करती है। और इस ताल्लुक़ से कुछ चीज़ें आने वाली है आगे की, यानी तालिब इल्म की फजीलत, इस ताल्लुक़ से हम इंशाअल्लाह ताला कुछ नुसूस को देखने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। तो फिलहाल जो यहाँ पर हमारा जो महल शाहिद है इस हदीस में, वो है तालिबुल इल्म। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया, मगर किस ताल्लुक़ से, यानी जो शरीयत का तालिब इल्म है, जो वही का तालिब इल्म है, तो उसके लिए आसमान और ज़मीन में जितनी मखलूक़ात है वो उसके लिए यानी इस्तिग़फ़ार करती है, हत्ता कि जो मछली होती है यानी पानी में, वो भी इसके लिए दुआ करती है, इस्तिग़फ़ार करती है। अब जो हमारे पास आखिरी लफ्ज़ है वो है आदाब। तो इल्म के ताल्लुक़ से भी बात हुई, तालिब के ताल्लुक़ से भी बात हुई, अब है आदाब। यानी आदाब से क्या मुराद है? आदाब चूँकि लफ्ज़ जो है ये जमा है और इसका जो वाहिद है, इसका जो मुफरद है वो है अदब, जमउ अदबिन, जमउ अदबिन, यानी अदब का वाहिद है, अदब का जमा है, आदाब जमउ अदब। और इसके बहुत सारे मानी हैं, जैसे एटिकेट्स है, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, डिसेंसीज, एथिक्स, मॉरल्स, प्रॉपर्टीज, या इसके अलावा इसके बहुत सारी मानी अंग्रेजी ज़बान में, उर्दू ज़बान में दस्तूर, कायदे, तौर तरीके, शाइस्तगी, सलीका, एहतराम, अखलाक, बहुत सारे मानी में इस्तेमाल होता है। बहरहाल आदाब लफ्ज़ सुनते ही एक इंसान को पता चलता है कि आदाब किसे कहते हैं। आया समझ? वो एक इंसान को, एक तालिब इल्म को यानी अदब वाला होना चाहिए। इसी ताल्लुक से ये किताब इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये थी मुख्तसर तौर, यानी हमने जो बात यहाँ पर की आदाब के ताल्लुक से। अब यहाँ पर जो यानी अहम नुक्ता आने वाला है वो है अहम्मियतुल अदबी फी तलबिल इल्म, यानी तलब इल्म में इल्म हासिल करने के बारे में अदब की कितनी अहमियत है, अदब की अहमियत कितनी है। तो इस ताल्लुक से हमारे सामने चंद अक़वाल है, चंद आसार हैं हमारे असलाफ के। उनमें से सबसे पहले हम देखेंगे मुहम्मद इब्न सीरीन, क़ाल मुहम्मद इब्न सीरीन रहिमहुल्लाहु ताला। ये कोई छोटे आलिम नहीं है, बल्कि ये पहली सदी हिजरी के आलिम दीन हैं। यानी ये उस दौर के आलिम दीन हैं जिसमें सहाबा अभी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं इनकी विलादत हुई है 32 हिजरी में, हालांकि जो सहाबे किराम आखिरी सहाबी इस दुनिया से जिन्होंने वफात पाई वो 101 में उन्होंने वफात पाई, यानी आखिरी सहाबी। गो ये उस दौर के आलिम दीन है जिसमें सहाबा मौजूद हैं। आया समझ? गो इसलिए उलमा फरमाते हैं ये बड़े ताबईन में से हैं, किबार ताबईन में से हैं मुहम्मद इब्न सीरीन, और इनकी जो वफात है वो 110 हिजरी में हुई रहिमहुल्लाह। फरमाते हैं, और इनका जो ये काउल नकल किया है ये इमाम खतीब बगदादी ने अल-जामिउ लिअखलाक़ अर्रावी व आदाब सामी में नकल किया। फरमाते हैं कि फी वस्फ़ी हाल ताबईन, यानी ये बाज ताबईन का हाल, उनके हाल का वस्फ बयान फरमा रहे हैं कानू यतअल्लमून अल हदिया कमा यतअल्लमून अल इल्म। फरमाते हैं वो हदी को, हदिया मुराद यहाँ पर है आदाब, यानी जो हमारे ये अपने ज़माने के ताबईन के बारे में फरमाते हैं कि जो ताबईन थे वो आदाब को कैसे सीखते थे, कमा यतअल्लमून अल इल्म, जैसे कि इल्म को सीखा जाता है, यानी जैसे इल्म को सीखा जाता है वैसे ही वो आदाब को सीखते थे। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे असलाफ में, हमारे मुतकद्दिमीन उलमा में आदाब की कितनी अहमियत थी।
यानी तमाम उलूम पढ़ने से पहले वो आदाब पढ़ते थे। आदाब उनके नज़दीक बहुत ही ज़्यादा अहम थे, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि उन्होंने कितने बड़े कारनामे किए। हमारी असलाफ में जितने भी उलमा हैं उन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए। किस बुनियाद पर? क्योंकि उनके अंदर आदाब थे। उनको पता था कि एक तालिब इल्म को कौन कौन से आदाब अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है, कौन कौन से आदाब अपने शेख के साथ अपनाने की ज़रूरत है, कौन कौन से आदाब अपने हम उम्र हम साथियों के साथ अपनाने की ज़रूरत है, और कौन कौन से आदाब आम लोगों के साथ अपनाने की ज़रूरत है। और इससे हमें ये चीज़ वाज़िया होता है कि आदाब की कितनी अहमियत है, और हमारे असलाफ इसका कितना ज़्यादा अहतमाम रखते थे। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए। हमारे सामने एक और काउल है, क़ाला मालिक इब्न अनस। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला बहुत ही बड़े आलिम दीन, बहुत ही बड़े फ़कीह रह चुके हैं, और ये भी पहली सदी हिजरी के आलिम दीन हैं। 93 में इनकी विलादत हुई और 179 में इनकी वफ़ात हुई रहिमहुल्लाह ताला। फरमाते हैं इमाम मालिक, लिफता यानी एक नौजवान से फरमाते हैं, मिन कुरैशिन, जो कुरैश का था, यब्ना अखी, ए मेरे भाई के बेटे, यब्ना अखी, ए मेरे भतीजे, जिसको हम कह सकते हैं ए मेरे भतीजे, तअल्लमिल अदब क़ब्ल अन ततअल्लमल इल्म, यानी अदब को सीखो इससे पहले कि आप इल्म को सीखो। यानी इल्म हासिल करने से पहले, इल्म सीखने से पहले, शरीयत का इल्म सीखने से पहले पहले आदाब को सीखो। और यही वजह है कि आज भी अरब दुनिया में हम अक्सर पाते हैं, या इसके साथ जो खलीजी ममालिक हैं उनमें हम अक्सर पाते हैं कि वहाँ पर जो शरीयत का तालिब इल्म है वो सबसे पहले आदाब तालिब इल्म पढ़ता है, सीखता है कि एक तालिब इल्म के अंदर कौन कौन से आदाब होने चाहिए। और इन्हीं आदाब की बदौलत हम देखते हैं कि यानी इन ममालिक में कितने बड़े बड़े उलमा, कितने बड़े बड़े फुक़हा मुहद्दिसीन पैदा हो रहे हैं आज भी। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो आदाब का एहतमाम रखते हैं। मगर हमारे बारे सगीर में इसका बहुत ही ज़्यादा फुकदान है। हम सबसे पहले डायरेक्ट किताब को लेते हैं, कुरान को लेते हैं, हदीस को लेते हैं, फ़िक़्ह को लेते हैं, उसूलुल फ़िक़्ह को लेते हैं, उसूलुल हदीस को लेते हैं, उसूलुल तफ़सीर को लेते हैं। मगर हमें चाहिए कि सबसे पहले हम आदाब अपनी ज़िंदगी में लाएं, आदाब पर मेहनत करें, आदाब की मशक अपनी ज़िंदगी में करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक बख्शे। तो ये काउल हिलियतुल अवलिया में अबू नुईम अस्बहानी रहिमहुल्लाह नकल करते हैं, यानी इमाम मालिक का। और इसी तरह एक और काउल हमारे सामने आदाब के ताल्लुक से फरमाते हैं, क़ाल शरीक इब्नु अब्दुल्लाह अन-नख़ई। शरीक इब्नु अब्दुल्लाह अन-नख़ई ये भी पहली सदी हिजरी के आलिम दीन है। 95 में इनकी विलादत हुई और 177 में इनकी वफ़ात हुई रहिमहुल्लाह। इनका कौल नकल किया है इब्न अबी हातिम ने जरह व तादील में। फरमाते हैं, क़लीलुम मिनल अदबी खैरुन मिन कसीर मिनल इल्म। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं कि एक आदमी के पास अगर थोड़ा अदब है, अगर उसके पास थोड़े आदाब है, ये इसके लिए बेहतर है, बजाय इसके कि इसके पास कसरत के साथ इल्म है। यानी एक आदमी के पास कसरत के साथ इल्म है मगर उसके पास आदाब नहीं है, उससे बेहतर वो आदमी है, उससे बेटर वो आदमी है जिसके पास आदाब अगरचे कम ही है मगर वो उससे बेहतर है। ऐसा समझ गो, मुजर्रद तौर पर किसी एक इंसान को अगर शरीयत का इल्म कसरत के साथ हो, मालूमात बहुत ज़्यादा हो, मगर उसके अंदर आदाब नहीं है, तो फरमाते हैं वो शख्स बेहतर नहीं है, वो शख्स बेहतर नहीं है। और इसके बरकस वो आदमी बेहतर है जिसके पास कम इल्म है मगर उसके पास आदाब अच्छे हैं, उसके पास आदाब हैं, तो वो उससे बेहतर है। इसलिए हमें इस कौल से भी यानी बहुत ही ज़्यादा नसीहत हासिल करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक से कि हम आदाब को अपना बिछौना बनाए, हम आदाब को अपना ओढ़ना बिछौना बनाए। उठना बैठना, चलना फिरना, कलाम करना, हमारा जो भी हमारा जो रूटीन होता है डे टू डे लाइफ में, हम उस अपनी ज़िंदगी में आदाब को अपनी ज़िंदगी में यानी ऐसे अपनाए जैसे एक औरत
مزین ہوتی ہیں، یعنی یہ جو مطلب زیور وغیرہ پہنتی ہیں، اس سے وہ اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں. ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ آداب کو ایسے ہی اپنائے اپنی زندگی میں، ڈے ٹو ڈے لائف میں. تو اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اور قول ہے. یہ مخلد بن حسین ہمارے اسلاف میں سے، ان کی وفات ہوئی ہے 191 میں. یہ دوسری صدی ہجری کے عالم دین ہیں. فرماتے ہیں نحن الى قلیل من الادب احوج منا الى کثیر من الحدیث. فرماتے ہیں نحن الى قلیل من الادب احوج منا الى کثیر من الحدیث. یعنی اگر ہمارے پاس کثرت کے ساتھ حدیث ہیں، کثرت کے ساتھ ہمارے پاس معلومات ہیں، انفارمیشن ہے، نالج ہے، اس کے برعکس ہم زیادہ محتاج ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑا ہی ادب ہو. اگر ہمارے پاس تھوڑا ہی ادب ہو، ہم اس کے زیادہ محتاج ہیں. فرماتے ہیں مخلد بن حسین رحمہ اللہ. اور ان کا قول نقل کیا ہے امام رام ہرمزی نے. امام رام ہرمزی نے فی محدث الفاصل، محدث الفاصل ان کی جو میاناز کتاب ہے اس میں. تو یہ تھے چند اقوال، چند آثار اس تعلق سے کہ اہمیت الادب فی طلب العلم، یعنی آداب کو اپنانا طلب علم میں اس کی کتنی اہمیت ہے. اور اس تعلق سے ہم نے چند اقوال آپ کے سامنے رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس اب یعنی اس کتاب کا جو مرکزی موضوع ہے، یعنی ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب میں. فی الحال تو آپ سمجھ لیں کہ ہم مقدمہ پڑھ رہے تھے آداب کے تعلق سے، طالب کے تعلق سے، علم کے تعلق سے. اب ہمارے سامنے جو اس کتاب کا یعنی مرکزی موضوع ہے وہ ہے آداب طالب العلم. ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب میں. تو اس کتاب کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں انواع طالب العلم، انواع طالب العلم، انواع آداب طالب العلم، یعنی طالب علم کے آداب جو ہیں اس کی کتنے انواع ہیں، اس کی کتنی ٹائپز ہیں. تو ہم نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیے ہیں. سب سے پہلی قسم ہے آداب طالب العلم مع نفسه. سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ آداب طالب العلم مع نفسه، یعنی ایک طالب علم کو اپنے آپ میں کون سے آداب اپنانے چاہیے. دوسرے نمبر پر آداب طالب العلم مع شیخه، یعنی طالب علم کے آداب اس کے استاد کے ساتھ، اس کے شیخ کے ساتھ. آداب طالب العلم مع زملائه، طالب علم کے آداب اس کے زملاء کے ساتھ، ہم عمر کے ساتھ، یا ہم کہہ سکتے ہیں ہم عصر کے ساتھ، یا ہم کہہ سکتے ہیں جو اس کے ہم جماعت ہیں اس کے ساتھ. آداب طالب العلم مع عامت الناس، عام مسلمانوں کے ساتھ، عامت المسلمین، عام مسلمانوں کے ساتھ طالب علم کو کون سے آداب اپنانے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے ابتداءً پھر سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کتاب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان آداب کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلی قسم النوع الاول آداب طالب العلم مع نفسه، یعنی طالب علم کو اپنے آپ میں کون سے آداب اپنانے چاہیے. تو اس تعلق سے ہمارے سامنے جو پہلا ادب اور انتہائی اہم ہے وہ ہے اخلاص النیت للہ عز وجل، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا. اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا. مراد یہ ہے کہ اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا، اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا. اور اخلاص جو ہے یہ ایسی نعمت ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارے ایک استاد فرماتے تھے اخلاص ایک ایسی نعمت ہے جو ہر ایک کو حاصل نہیں ہے، جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے انسان پائے جاتے ہیں جو بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں، جن کا بڑا کیا کہتے ہیں رتبہ ہے ہمارے معاشرے میں، مگر ان کے پاس اخلاص نہیں ہے، اخلاص کی یہ نعمت نہیں ہے. مگر ہمارے پاس اتنے ایسے بھی اشخاص ہیں، ہماری امت میں ایسے بھی اشخاص ہیں جو اس نعمت سے لبریز ہیں، اس نعمت سے لبریز ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا ہر اعتبار سے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، وہ اخلاص کے اعتبار سے کرتے ہیں. اور ہمیں طالب علموں کو اس کا بہت ہی زیادہ اہتمام رکھنا چاہیے. وہ توحید کافی نہیں، ایک انسان کا موحد بننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس اخلاص ہے. اخلاص کی یہ نعمت ہے.
इसलिए एक तालिब इल्म को चाहिए, बल्कि मैं इस एतबार से कहूँ कि एक मुसलमान को चाहिए कि वो इखलास की इस नियामत को अपनी ज़िंदगी में लाए, क्योंकि इखलास कोई छोटी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को इस नियामत से यानी मुनव्वर करें, इखलास की इस नियामत से अल्लाह ताला हमारे दिलों को मुनव्वर करें। तो इस ताल्लुक से हमारे सामने क़ाल शेख बकर इब्न अब्दुल्लाह अबू ज़ैद, चूँकि हमने इब्तिदा में इस ताल्लुक से ये बात फरमाई कि शेख बकर इब्न अब्दुल्लाह अबू ज़ैद रहिमहुल्लाह ताला एक मायानाज आलिम दीन रह चुके हैं, जिन्होंने इस ताल्लुक से एक किताब लिखी है, यानी आदाब के ताल्लुक से, यानी जिसका नाम हम जानते हैं आदाब या हिलियतु तालिब इल्म, हिलियतु तालिब इल्म के नाम से, जो कि मारूफ किताब है पूरी दुनिया में। तो उस किताब में शेख बकर फरमाते हैं, उस किताब में शेख बकर फरमाते हैं, यानी इसी ताल्लुक से जो इखलासुन निय्या लिल्लाहि अज़्ज़ व जल, इसी ताल्लुक से शेख बकर फरमाते हैं अल इल्मु इबादा, अल इल्मु इबादा, यानी इल्म जो है ये इबादत है। यानी एक तालिब इल्म को ये अपनी जगह तस्वुर करना चाहिए, बल्कि अपनी जगह ये चीज़ अपने जहन में बिठा लेना चाहिए कि मैं जो इल्म सीख रहा हूँ ये कोई आम अमल नहीं है, आम एक्शन नहीं है, बल्कि ये इबादत है, मैं अल्लाह ताला की इबादत कर रहा हूँ। जब ये चीज़ एक इंसान के दिल में घर कर जाएगी, तब ही हकीकी तौर तालिब इल्म यानी वाकई तालिब इल्म में मुखलिस बनेगा। वगरना हम देख रहे हैं बहुत सारे तलबा होते हैं जो इल्म में आते हैं, जाते हैं वहाँ से यहाँ, मगर उनके पास इखलास नहीं होता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि इल्म में इखलास की कितनी अहमियत है। शेख बकर फरमाते हैं अल इल्मु इबादा, अल इल्मु इबादा, अल इल्मु इबादा। और अगर हम इखलास की बात करें, इखलास के ताल्लुक से उलमा फरमाते हैं, इस किताब में ये तारीफ मौजूद नहीं है, तो ऐसे ही आप इसको नोट कीजिए। फरमाते हैं इमाम इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाहु तआला, इखलास किसे कहते हैं? फरमाते हैं हुआ इफ़रादुल हक़्क़ि सुब्हानहु बिल क़स्दि फ़ित ताअ, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला को एक जानना, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को एक जानना बिल क़स्द, क़स्द के साथ फ़ित ताअ, इताअत में। यानी अगर आपको कोई इताअत करनी है, कोई इबादत करनी है, कोई अमल करना है, उस अमल में आपको ये कसद रखना चाहिए कि ये इबादत जो है इसमें अल्लाह ताला मुनफरिद है, मतलब ये मैं सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की रिजा के लिए कर रहा हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं, ना मेरा शो ऑफ का मकसद है, ना मेरा शोहरत का मकसद है, ना उजुब का मसला है, ना कोई और गरज है। मेरा एक ही गरज है कि अल्लाह ताला मुझसे राजी होना चाहिए। और तालिब इल्म को भी चाहिए कि वो ये चीज़ अपने जहन में बिठा ले कि जब भी वो इल्म की तलाश के लिए निकले, जहां भी जाए, चाहे छोटा से छोटा ही कोर्स क्यों ना हो, तो उसके पास ये चीज़ जहन में होनी चाहिए, बल्कि दिल में होनी चाहिए, यानी इखलास, यानी मैं सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। और इसीलिए एक अरब आलिम है शेख मोहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद, शेख मोहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद हफिज़हुल्लाह ताला, एक मायानाज आलिम दीन है अरब दुनिया में। उन्होंने एक सीरीज़ लिखी है आमालुल कुलूब के नाम से, आमालुल कुलूब के नाम से, यानी दिल के जो आमाल है। तो उस ताल्लुक से उन्होंने एक किताब, छोटी सी किताब लिखी है जो इखलास पर है, यानी इखलास की कितनी अहमियत है, और वो पढ़ने के लायक है, बल्कि वो पूरी सीरीज पढ़ने के लायक है। उसमें उन्होंने दिल के जो अमाल होते हैं उसके ताल्लुक से बात फरमाई। तो इखलास कौन सी अमल है? ये दिल के साथ ताल्लुक रखती है। वो इखलास कहाँ होता है? इंसान के दिल में होता है। ऐसा समझ। तो यहाँ पर जो नुक्ता हमने लाया है रेड कलर में, मॉडर्न जो एपिस्टेमोलॉजी है, मॉडर्न जो हमारी इल्मियात हैं, हमारी दुनिया में जो जदीद दौर में जो असरी उलूम पाए जाते हैं, तो उसमें ये चीज़ हम नहीं देखते। उसमें हम तो ये दूर दूर तक भी तस्वुर नहीं कर सकते कि उनके पास ये चीज़ हो कि वो इल्म को इबादत समझे, यानी जो वो दुनियावी इल्म हासिल कर रहे हैं तो वो उसको इबादत समझे। और जैसा कि हम देखते भी हैं कि वो दुनियावी इल्म या असरी उलूम किस लिए हासिल करते हैं, उनका जो गाया या उनका जो मकसद होता है वो यही होता है कि हमें
यानी जॉब मिलना चाहिए, हमें नौकरी मिलनी चाहिए, या हमें फलानी फलानी मनसब हासिल होना चाहिए। तो उनके जो मकासद है, उनके जो अगराज होते हैं, वो सिर्फ यही होते हैं कि हमें दुनिया में फलानी फलानी चीज़ हासिल होना चाहिए। मगर शरीयत का तालिब इल्म जो होता है, या हम कह सकते हैं जो शरीयत का इल्म है, उसमें ये चीज़ नहीं है, बल्कि हम इसमें ये चीज़ पाते हैं कि ये इबादत है। वो अगर ये इबादत है तो इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए कि मैं ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये सब चीज़ कर रहा हूँ। इसलिए तो एक तालिब इल्म को चाहिए कि वो इखलास को अपनी ज़िंदगी में अपनाए, अल्लाह ताला से बार बार दुआ करे, इल्तिजा करे, आउज़ारी करे कि ए अल्लाह मुझे इखलास की इस नेमत से यानी मुनव्वर फरमा। और इस ताल्लुक से यहाँ पर एक कुरान की आयत है सूरह बय्यिना की। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर हम इसका सलीस तर्जुमा देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, यानी लोगों को सिर्फ यही हुक्म दिया गया है कि वो इखलास के साथ अल्लाह ताला की इबादत करें। लोगों को सिर्फ यही हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह ताला की इबादत इखलास के साथ करें। तो इससे हमें यह पता चलता है कि कुरान की आयत में भी इखलास के बारे में अल्लाह ताला ने हमें उबारा कि यानी इबादत का अगर मामला है तो वो उसमें इखलास का होना लाबुदी है, इखलास का होना ज़रूरी है। और इसी तरह एक हदीस मुबारक जो इमाम बुखारी ने सही बुखारी में नकल की, और इस हदीस के जो रावी हैं वह है सैयदुना उमर इब्नुल खत्ताब, सैयदुना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, कि बेशक आमाल का दारो मदार नीयत पर है, आमाल को दारो मदार नीयत पर है। यानी इंसान की जितनी भी आमाल हैं, जितने भी एक्शंस हैं, उनका मदार किस चीज़ पर है? इंसान की नीयत पर। और नीयत का ताल्लुक किसके साथ है? नीयत का ताल्लुक इंसानी दिल के साथ है। आए समझ? और इसके बाद फरमाते हैं व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। यानी इंसान के जो भी अमाल होंगे उसका नतीजा उसको उसकी नीयत के ताल्लुक से ही मिलेगा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मिसाल फरमाया, फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, बस जिस शख्स की हिजरत यानी तर्क वतन मुराद है यहाँ पर, जिस शख्स की हिजरत दुनिया हासिल करने के लिए हो, फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, जिसकी हिजरत, यानी हिजरत किसे कहते हैं? एक मुल्क को छोड़ना और दूसरे मुल्क में इंतकाल करना, यानी लिंग्विस्टिक एतबार से शरीयत में इसका मफहूम कुछ और है। फरमाते हैं जिस शख्स की हिजरत इस गरज से हो कि वो अल्लाह ताला के लिए या उसके रसूल के लिए, फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, तो उसकी हिजरत किसके लिए है? तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा, और जिसकी हिजरत दुनिया हासिल करने की गरज से हो, औ इम्राअतिन यनकिहुहा, या इस गरज से हो कि वो किसी औरत के साथ शादी करें। अगर वो किसी जगह जा रहा है तो दुनिया हासिल करने के लिए, अगर वो किसी जगह जा रहा है तो किसी औरत के साथ शादी करने के लिए जा रहा है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फहिजरतुहु इला मा हाजर अलैह, तो उस शख्स की हिजरत उसी चीज के लिए है जिसके लिए उसने नियत की है। वो असल में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हदीस में हमें यह समझाना चाहते हैं कि नियत की कितनी अहमियत है। एक इंसान जिस चीज के लिए भी नियत रखेगा तो उसके एतबार से ही उसका नतीजा निकलेगा, उसके एतबार से ही उसका क्या कहते हैं उसका सवाब मिलेगा। और हमारे जो फुकाहा है उन्होंने इस ताल्लुक से एक कायदा भी यानी मुरत्तब दिया इसी हदीस की बुनियाद पर।
अल उमूरु बिमकासिदिहा, जैसे कि हमारे फुकाहा ने इस ताल्लुक से जो कवाइद फ़िक़हिया के ताल्लुक से किताबें लिखी, उन्होंने उस ताल्लुक से एक किताब लिखी अल कवाइदुल फ़िक़हिया अल कुबरा अल खमसा, यानी 5 फ़िक़ही बड़े कवाइद। उसमें उन्होंने एक कायदे का ज़िक्र फरमाया अल उमूरु बिमकासिदिहा, यानी चीज़ों का ताल्लुक, आमाल का ताल्लुक, उमूर का ताल्लुक उनके मकासद से है, यानी जैसी उसकी नीयत होगी उसी एतबार से उसका नतीजा मिलेगा। आया समझ? तो ये हदीस हमारे सामने जो है ये बहुत बड़ी दलील है इखलास के ताल्लुक से, और इसीलिए इमाम बुखारी ने इस किताब सही बुखारी की इब्तिदा इसी हदीस से फरमाई। उनका ये गर्ज ही था, उनका ये मकसद ही था कि ये जो किताब पढ़ने वाला है तालिब इल्म, उसको ये पता चले कि यानी इखलास की कितनी अहमियत है, नीयत में इखलास का होना, नीयत में इखलास का पाया जाना कितना ज़रूरी है एक तालिब इल्म के लिए, बल्कि एक मुसलमान के लिए। आया समझ? उसके बाद इख्तिसारन हमारे सामने एक और नुक्ता है, बिमा यकूनुल इखलासु फी तलबिल इल्म। ये इंतहाई अहम नुक्ता है और इसी पर हम इंशाअल्लाह फिर इक्तिफा फरमा रहे हैं। फरमाते हैं बिमा यकूनुल इखलासु फी तलबिल इल्म, फरमाते हैं तलब इल्म में एक तालिब इल्म को इखलास कैसे आएगा, यानी तालिब इल्म में एक तालिब इल्म को इखलास कैसे आएगा। इस ताल्लुक से कुछ हमारे सामने कुछ नुकात हैं। सबसे पहला, इम्तिसालु अमरिल्लाह, एक तालिब इल्म को चाहिए कि वो अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करे, अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करे, यानी जो भी तालिब इल्म अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करता है, अल्लाह ताला के अवामिर की पैरवी करता है, अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी करता है, तो ये ज़रूरी बात है कि अल्लाह ताला उसको ये नियामत अता फरमाएगा, अल्लाह ताला हमें भी अता फरमाए। उसके बाद दूसरी अहम चीज़ हिफ्ज़ु शरीअतिल्लाह, हिफ्ज़ु शरीअतिल्लाह, यानी अल्लाह ताला की शरीयत की हिफाजत करना। यानी अगर तालिब इल्म का मकसद है कि मैं इस इल्म के ज़रिए से अल्लाह ताला की शरीयत की हिफाजत करूँगा, अल्लाह ताला की शरीयत को दिफा करूँगा, डिफेंड करूँगा, अल्लाह ताला का डिफेंड करूँगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का डिफेंड करूँगा, सहाबा का डिफेंड करूँगा, इसी तरह शरीयत के उलूम का डिफेंड करूँगा, अगर ये मकसद है, शरीयत के दिफा का मकसद है, इसकी हिफाजत का मकसद है, तो इस आदमी के दिल में भी अल्लाह ताला ये नियामत पैदा फरमाएगा। और फरमाते हैं ये दोनों चीज़ें कैसे एक इंसान के अंदर आएगी, फरमाते हैं यकूनु बित्ताल्लुम, इनके लिए भी एक इंसान को सीखने की ज़रूरत है, ये सीखने से आती है, यानी अल्लाह ताला के अवामिर को अपनाना, उन पर चलना, इसके लिए भी एक इंसान को यानी सीखने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की शरीयत की हिफाजत करना तो ये आम इंसान कर सकता है नहीं, बल्कि इसके लिए भी एक इंसान को सीखने की ज़रूरत है कि मैं कैसे अल्लाह ताला के शरीयत की हिफाजत फरमाऊँ। और उसके बाद तीसरा जो उन्होंने नुक्ता यहाँ पर फरमाया वो है इत्तिबाउ शरीअति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा नुक्ता ये है कि जो तालिब इल्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की इत्तिबा करेगा, जो तालिब इल्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की इत्तिबा करेगा, तो उसको भी अल्लाह ताला इस नियामत से नवाजेगा। अल्लाह ताला हमें भी इस नियामत से नवाजे। और उसके बाद फरमाते हैं नहयुल उलमाई नहयुल उलमाई अन तलब्बुलियात, यानी उलमा ने जो चौथा नुक्ता इस ताल्लुक से यहाँ पर जिक्र फरमाया वो कि तलब्बुलियात से उन्होंने मना फरमाया। और तलब्बुलियात कौन सी चीज़ें हैं, यानी जो इखलास की मनाफी हैं, फरमाते हैं अल मसाइलु अल्लती युरादु बिहा अश-शुहरा, यानी वो मसाइल जिनके ज़रिए से एक आदमी शोहरत चाहता है, वो मसाइल जिनके ज़रिए से एक शख्स शोहरत चाहता है, उसका गर्ज शोहरत है, तो उनको कहते हैं तलब्बुलियात। तो ये शेख बकर ने भी जिक्र फरमाया अपनी बुक में, और इसी तरह शेख अब्दुल अजीज़ अल अकल जिनकी किताब मदखल इला उलूम शरिया, उन्होंने इस चीज़ का जिक्र फरमाया कि एक तालिब इल्म में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर उसके अंदर ये चीज़ है तो उसके अंदर इखलास नहीं रहेगा, यानी वो मसाइल जिनके ज़रिए से ये शोहरत चाहता है, तो इखलास तो यहाँ पर ख़त्म। ऐसा समझ, वो तालिब इल्म का मकसद ही नहीं होना चाहिए, बल्कि एक आलिम का मकसद ही नहीं होना चाहिए कि मुझे शोहरत मिले, मुझे दुनिया में कोई मनसबा मिले, मुझे दुनिया में कोई रुतबा मिले। ऐसा समझ। तो अब इस नुक्ते के ताल्लुक से चंद बातें फरमाते हैं, यानी शोहरत में एक आदमी कैसे पड़ता है, एक तालिब इल्म शोहरत के ताल्लुक से कैसे इन बड़े बड़े मसाइल में पड़ता है। फरमाते हैं इस ताल्लुक से कुछ बातें, यानी अवामुन नास के सामने शाज़ मसाइल पर अमल करना, ये बहुत ही अहम बात है, और इस पर मैं चाहूँगा कि आप बगौर इसको समात फरमाएं कि ये शाज़ मसाइल,
शाज़ मसाइल क्या होते हैं? शाज़ मसाइल यानी रेयर जिसको कह सकते हैं, यानी जिनको आम लोग नहीं जानते, जिनको आम लोग नहीं जानते हैं, जो डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं होते हैं, इस्तेमाल नहीं होते हैं, या उलमा भी उनको डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते। तो एक तालिब इल्म क्या करता है, वो इल्म सीखता है, इसको कोई नया मसला पता चलता है जो आम लोगों को पता नहीं है, तो ये उठता है और आम लोगों में इसको अमल करता है, आम लोगों में इस चीज़ पर अमल करता है। और इससे क्या होता है? तो इससे खलफशार पैदा होगा, इससे लोगों में खलफशार पैदा होगा, फितना पैदा होगा। और ऐसे मसाइल जिनको उलमा ने भी यानी क्या कह सकते हैं मुतारिफ नहीं करवाया, तो एक तालिब इल्म को भी चाहिए कि वो आम लोगों के सामने ऐसे मसाइल बयान ना करे। और उलमा इसी ताल्लुक से फरमाते हैं, अगर इसने ये चीज़ें बयान की तो इसका गरज क्या है? इसका गरज है कि मैं मशहूर होना चाहता हूँ, यानी मैंने वो बात आपके सामने लाई जो अभी तक किसी आलिम ने नहीं लाई। ऐसे भी आप नमूने, मैं कह सकता हूँ नमूने पाओगे हमारे माशरे में, चाहे वो नाम नहाद स्कॉलर्स क्यों ना हो, वो ऐसे मसाइल लोगों के सामने लाते हैं जिनको उलमा ने आम लोगों के सामने कभी बयान नहीं किया। तो उस आदमी का मकसद क्या है फिर? तो यहाँ तो यानी जाहिर सी बात है कि इसका मकसद ही है कि मैं लोगों में मशहूर होना चाहता हूँ। अल्लाह ताला इस मरज से हमें महफूज फरमाए। इसी तरह उलमा फरमाते हैं कि तालिब इल्म जब इल्म के लिए निकलता है, इल्म हासिल करता है, चंद साल देता है, तो इसके कपड़े तब्दील हो जाते हैं, इसके कपड़े तब्दील हो जाते हैं, यानी जैसा ये कपड़ा पहनता था आम फाहम लिबास, अब ऐसे कपड़े इसके पास नहीं है, अब इसके पास अलग ही टाइप के कपड़े हैं। और हमें अपने उर्फ का ख्याल रखना चाहिए इस ताल्लुक से। हमारा जो कश्मीरी ट्रेडिशन है, कश्मीरी कल्चर है, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि अरब का कोई कल्चर है वो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, या किसी और कंट्री का कल्चर है वो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे उलमा इस ताल्लुक से बहुत ही ज़्यादा हमें क्या कहते हैं नसीहत करते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि हकीकी सुन्नत पर अमल करना ये है कि हम अपने जो उर्फ है, जो जायज़ उर्फ हैं, जो शरीयत के मुताबिक है, जो शरीयत के खिलाफ ना हो, हम उस उर्फ पर चलें, हम उस उर्फ को अपनाएं, उस उर्फ को अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। और इसको मैं अगर तफसील के साथ कहूँ, हमारी शादियों का हाल आप देखो, यहाँ पर आप देखो कि अरब का वो क्या कहते हैं जुब्बा, अरब का वो जो रिदान होता है, या या खिमार वगैरह शादियों पर हमारे बाज बाई पहनते हैं। या इसी तरह हमारा यहाँ अब देखो अक्सर देख रहे हैं कि जुब्बा वगैरह लोग पहनते हैं। हमारे बाज़ उलमा फरमाते हैं ये लिबास शोहरा है, क्योंकि हमारे कल्चर में ये लिबास पाया नहीं जाता। हमें चाहिए कि वो लिबास पहने जो यहाँ का कल्चर है। मगर हम देखते हैं बाज़ औक़ात तालिब इल्म जो होते हैं, वो इल्म सीख रहे हैं, कुछ चंद साल दिए, कुछ किताबें पढ़ी, तो वो उनके कपड़े तब्दील हो जाते हैं। तो उलमा फरमाते हैं इनका गर्ज ही यही है कि हम लोगों में मशहूर हो जाए, अल्लाह ताला बचाए। और इसी तरह फरमाते हैं लहजात तब्दील हो जाते हैं, इंसान के लहजात, यानी इसका जो लहजा है, इससे पहले ये यानी जो इसका क्या कहते हैं मामूल था, जैसे ये बात करता था, इससे पहले जैसे ये बात करता था, अब इसका ये लहजा चेंज हो रहा है। अब ये किसी की कॉपी कर रहा है, यानी किसी आलिम की कॉपी कर रहा है, उसी की नकल कर रहे हैं, उसी के एतबार से ये बात कर रहे हैं। अगर इसको बयान भी देना है, वाज भी देना है, दर्ज भी देना है, तो उसी की कॉपी कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि इसका उलमा फरमाते हैं ये एक ऐसी चीज़ है, इसके ज़रिए से भी एक तालिब इल्म शोहरत चाहता है। और इसी तरह सोशल मीडिया पर शाज़ मसाइल डालना, ये भी हम आम देख रहे हैं कि एक तालिब इल्म है, वो कोई बात सीखता है, उस्ताद के पास जाता है संडे क्लासेस में या किसी और जगह पर ऑनलाइन वगैरह, जब कोई बात सीखता है तो ये बात जो आम लोगों में मारूफ नहीं होती है, तो इसको सोशल मीडिया पर चढ़ाता है, स्टेटस डालता है, ताकि लोगों को पता चले कि इसको कितनी पता है, इसको नया मसला पता है जो आम लोगों को भी पता नहीं है। और इसी तरह सोशल मीडिया पर अल्लाह ताला बचाए कि लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स या व्यूवरशिप का हरीस बनना। उलमा इस चीज़ को भी यहाँ पर मेंशन करते हैं इस ताल्लुक से कि एक तालिब इल्म इस एतबार से भी शोहरत चाहता है, इस एतबार से भी शोहरत चाहता है। अगर ये सोशल मीडिया पर अपना कोई कंटेंट डाले, अपना कोई बयान, अपना कोई क्लिप, अपना कोई भी पोस्ट डाले, तो इसका गरज है कि लोग मुझे लाइक करने चाहिए, लोग मेरे पोस्ट पर कमेंट करने चाहिए, लोग मेरे पोस्ट को शेयर करने चाहिए, या मेरी जो ये व्यूवरशिप है ये बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। यानी अगर इसके दिल में यही इंटेंशन है, सिर्फ यही इंटेंशन, तो उलमा फरमाते हैं ये भी एक जरिया है, इसके ज़रिए से भी एक आदमी शोहरत चाहता है। अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से हमें महफूज फरमाए।
تو ہمارا مقصد ہونا چاہیے، ہمارا غرض و غایہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں، میں یہ آپ کو اس بات سے منع نہیں کرتا کہ آپ سوشل میڈیا یوز نہ کریں، بلکہ دعوت کے بارے میں، دعوت دین کے بارے میں یہ ایک اہم ٹول ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس ایک اہم ٹول ہے آج کے دور میں کہ ہم سوشل میڈیا کو دعوت کے لیے یوز کریں، مگر کون کرے گا؟ جس کے پاس ایسا ملکہ ہو، جس کے پاس ایسا ملکہ ہو، وہ اس کے لیے اس میدان میں کودے، ہر ایک ایرا گیرا اتو کھیرا اس میں اپنا قدم نہ داخل کریں، کیونکہ اگر ہر ایک اس میں جائے گا تو پھر اس کے لیے بڑے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی اسی پر اکتفا کریں گے، انشاءاللہ تعالی نیت کے تعلق سے اور کچھ آنے والا ہے آگے، یعنی نیت کی علاج کے تعلق سے یا اسی طرح اور کچھ چیزیں آنے والی ہیں انشاءاللہ تعالی، تو وہ آئندہ درس میں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔